Of 25 years in various industries, and he's also a master trainer for sales effectiveness, leadership skills, design thinking, and a Gallup certified strength finder coach. He's an internationally acclaimed certified trainer. He's been in the industry, has worked with various organizations like Procter and Gamble, PepsiCo, Cadbury's, Parle Group, then with Airtel, Tata Telecommunications, and he's been a veteran of 500 plus training workshops and 20,000 plus trainees have been trained under his belt. He's a master trainer for various organizations like Bajaj Alliance, Ashok Leyland, Swaraj Tractors, Unicam, Parle Agro, Jockey, HDFC Bank, LIC, Bank of Baroda, and number. So, Mr. Mishra, I heartily welcome you on behalf of all my students, my staff, my colleague Dr. Renzing Lama, and everybody here at IITTM NOIDA. So, Mr. Mishra will be deliberating today on the human behavior aspects, which of course is a part of the organization behavior as well. And he will also be touching upon the aspects of design thinking. So again, Arvindji, I welcome you all on behalf of IITTM, and the house is all yours. Mr. Arvind Mishra. So, namaskar and thank you very much, Pavanji, for such a fantastic introduction. कुछ ज्यादा आपने बोल दिया है, खैर इतना कोशिश करूंगा, जब आपने इतना बोल दिया तो सेल्फ प्रोक्लेम बर्डन अपने ऊपर आ ही जाता है, तो आई हैव टू जस्टिफाई व्हाट मिस्टर पवन हैज ऑलरेडी सेड. तो यस, आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और बड़ा अच्छा लगता है आपके जैसे इतने फ्रेश और मुस्कुराते हुए चेहरे देख के, बिकॉज लगता है कुछ दिन पहले ही शायद हमने इस एज को पार किया है, राइट? सो विद दैट एक्सपेक्टेशन एंड विद ऑल फैंटास्टिक व्यूअर्स लाइक यू, तो शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, वो ये जानना चाहूंगा कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ या नहीं, राइट? सो टू गेट श्योरिटी ऑफ दैट, मैं आपसे एक छोटा सा काम करूंगा. आप लोग अपने चैट बॉक्स पे जाइए और A is for audio and V is for video. So if I'm audible and visible to you, just type A for audio and V for video. So I'll come to know that yes, I'm audible and visible to all of you. Yes, thank you Ravi, thank you Deepakshi, thank you Vidyadharan, thank you Nidhi, thank you Rishabh, thank you Ayushi, thank you Mirza Sahab, thank you Dogra Sahab, thank you Mrinalini, thank you Himanshu, thank you Anish, Stuti. Oh great. अगर इतने लोगों को मैं ऑडिबल भी हूं और विजिबल भी हूं, तो आई एम मोर देन श्योर आई विल बी ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल अदर्स. अगर अब किसी को ऑडिबल एंड विजिबल नहीं हो, तो ही शुड बेटर करेक्ट हिज नेटवर्क, अदरवाइज इट्स ऑल फाइन. ग्रेट. सो शुरुआत करते हैं आज के दिन का, और आज हम दो टॉपिक्स पे जरा बात करने जा रहे हैं. पहला टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे दैट इज डिजाइन थिंकिंग, राइट? और दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे दैट इज ह्यूमन बिहेवियर. एनी आइडिया ऑफ डिजाइन थिंकिंग? What is the concept of design thinking? काफी आजकल चल रहा है. Are you all excited about what the design thinking is all about? If you are excited, quickly write E for excited. Then I'll come to know, yes, I've got very excited audience. Yes, 4 and 5 people. Yes, good, fantastic. So, in fact, it is the excitement and the energy of the participants which is translated into the excitement and energy of the person who is conducting the webinar, right? जो हमारी अपनी एनर्जी कुछ नहीं होती है, ये आप लोगों की एनर्जी होती है जो मिलके कंट्रीब्यूट करती है और हमारी एनर्जी को बढ़ा देती है और हमें एक्साइटेड कर देती है. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. और आज का हम दिन का शुरुआत करते हैं, एंड I'll start the day since you are all excited. So I'm equally excited, and now I'm going to start the day with
my screen, and here comes the screen. Okay, तो किथे गया? Yes, true. Here it comes. So, very good afternoon and welcome to the Design Thinking and Human Behavior webinar on May 21 by Arvind Mishra, www.sdtp.co.uk. And SDTP means Society of Design Thinking Professionals. तो जाहिर सी बात है, शुरुआत करने से पहले अपना तारुफ कराना बहुत जरूरी है, अपना इंट्रोडक्शन कराना बहुत जरूरी है. तो a trainer should always be introduced. So I am Mr. Arvind Mishra, Chief Coach and Leadership Advisor. और थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं. वो ये किधर गया इंट्रोडक्शन? सेव नहीं हो पाया, कोई बात नहीं. तो what I'm going to talk about now is अपने बारे में बता देते हैं. तो जैसा कि पवन जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, whenever we talk to a trainer, तो जब भी हम ट्रेनर के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि we should be a good, तो उनको 3 पैरामीटर पे जज किया जाता है. नंबर 1 पैरामीटर कि he should be well qualified, right? तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो yes, I am an internationally certified master trainer for SDTP and also a design thinking practitioner. And apart from being the master trainer and design thinking practitioner, I'm also a Gallup certified strength finder coach. Strength finder coach से क्या अर्थ होता है? Strength finder मतलब ये होता है कि जो भी इंसान होता है, जो भी human being होता है, he is a collection of strength and weaknesses both, right? So अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर भी स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस भी हैं. आपकी बात करूं तो आपके अंदर भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं. तो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों. एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अपनी वीकनेस को ठीक करो तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर अपनी स्ट्रेंथ्स को और हाईलाइट कर लो और ताकतवर बना लो तो वी कैन गो फैंटास्टिकली वेल, राइट? सो जो लोग एक्सेप्शनली सक्सेसफुल है, लाइक सचिन तेंदुलकर या लाइक सोनम वांगचुक या विराट कोहली या AR रहमान, इन लोगों ने अपनी कमियों को शायद इतना ठीक नहीं किया जितना स्ट्रेंथ पे काम किया, राइट? तो स्ट्रेंथ फाइंडर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कमियां जो हैं उसको तो आप ठीक करिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ पे काम कर जाएंगे तो यू कैन डू वंडर्स, राइट? सो स्ट्रेंथ फाइंडर कोच, मैं एज अ स्ट्रेंथ फाइंडर कोच आई कैन हेल्प यू टू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड गो अहेड विद इट, राइट? सो दिस वाज व्हाट माय सर्टिफिकेशंस आर. फिर हम बात करते हैं जो ट्रेनर शुड बी हैविंग द राइट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. यस, जैसा पवन जी ने बताया कि आई एम गॉट अ वेटरन ऑफ 500 से आप तो 600 हो चुका है. आई हैव बीन अ वेटरन ऑफ 600 प्लस वर्कशॉप्स एंड आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 25,000 प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स. और साथ साथ अब तो वेबिनार का भी एक्सपीरियंस हो चुका है. दिस इज माय 56th वेबिनार इन लास्ट 1.5 मंथ, दैट इज 45 डेज. और ये सफर बहुत बढ़िया चल रहा है. और कहते हैं कि आई हैव एक्चुअली कन्वर्टेड पैंडेमिक इनटू पॉसिबिलिटीज. जहां पैंडेमिक में सब लोग परेशान हो रहे थे, सो आई चेंज माय एटीट्यूड एंड आई डेवलप अ पॉसिबिलिटी by learning how to be a good webinar conductor. और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ. और ये हमारा क्या कहते हैं, this is about my attitude. और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आई हैव वर्कड विद मोर देन 53 ऑर्गेनाइजेशंस. और वो 53 ऑर्गेनाइजेशंस हमारी MNCs भी हैं और कॉर्पोरेट्स भी हैं और साथ साथ SMEs भी हैं. तो ये जो SMEs होती हैं ये हमारे लिए बड़े मजेदार कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विल में भी हल्के होते हैं, स्किल में भी हल्के होते हैं. तो इनको डेवलप करने में बहुत मजा आता है. सो आई एम अटेंडिंग टू द SMEs, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस एंड कॉर्पोरेट्स एंड MNCs, ऑल द 3, राइट? और 53 करीब इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया. साथ में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे UP Dial 100 या UP UNICEF या अपना UP पुलिस, इनके साथ भी काम किया है. तो मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास भी है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरा जो क्या कहते हैं मेरी क्वालिफिकेशंस है, इसकी बदौलत अगला 1 घंटा एक शानदार समय होने जा रहा है. और आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट सर्टेन वैल्यूज इनटू योर वैल्यू सिस्टम, राइट? सो अब शुरुआत करते हैं डिजाइन थिंकिंग के बारे में एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डिजाइन थिंकिंग इज, राइट? सो अभी मैं थोड़ा डिजाइन थिंकिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूँ, राइट? सो इन दिस प्रोग्राम वी आर गोइंग टू शेयर अ फ्यू एग्जांपल्स. और उसमें देखेंगे कि डिजाइन ड्रिवन इनोवेशंस कैसे हुए हैं और कैसे डिजाइन थिंकिंग की मदद से इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाया है और कैसे इन्होंने डिजाइन थिंकिंग ने इंसान की प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, उनको सॉल्व किया है.
राइट। तो सबसे पहले क्योंकि हम कहा जाता है कि जितना अच्छा पिक्चर्स बताती हैं, जितना अच्छा एग्जांपल्स बताते हैं, इतना शायद कोई भी डेफिनेशन बता नहीं सकती, राइट। सो फर्स्ट we'll look at the examples and then we'll try to understand what design thinking is all about, right. सो मैं आपको धीरे से एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर रहेगी लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए, और फिर मैं जरा आप लोगों से पूछूंगा what do you understand this is. This picture will be on your screen for 10 to 15 seconds. Yes. Can I quickly go to the chat box and understand what is this? Yes, what is this picture about? इस पिक्चर से आपको क्या देखा इसमें पिक्चर में आपने? मिर्जा साहब कहते हैं MRI machine. Okay, good. Varsha says MRI scanner, body scanner. Sahil says MRI screen. Okay. How was this different from the routine MRI screen and scanners? MRI screen for children. Deepakshi Jolly says MRI screen for children. Right. Deepakshi, what made you feel that this was an MRI screen machine for children? What made you feel that? कैसे आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे? Cartoon say, fantastic, very right, Deepakshi, yeah, absolutely. And he says it is the colors and the paintings. Good, fantastic. Let's go to see as to why this happened. तो जरा देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसको हमने इस प्रकार से क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ी इस प्रकार की मशीन बनाने की, right? So let's have a look at this कि क्या जरूरत पड़ी इस प्रकार की मशीन बनाने की। तो जैसा आप देख रहे हैं इस मशीन में, अगर आप देखें, oh, you are presented to everyone. Okay. So Doug Diaz साहब जो थे इस मशीन के इंजीनियर थे, जब उन्होंने इस मशीन को बनाया तो बड़ा ही गर्व महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी अच्छी मशीन बना दी है और लोगों के अब ये बड़ा काम आएगी। लेकिन एमआरआई मशीन में आप सभी जानते हैं कि हम लोग जाते हैं और अपने रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन गॉड फॉरबिड भाई किसी को एमआरआई मशीन में ना जाना पड़े, लेकिन जो लोग एमआरआई मशीन के अंदर गए हैं उनका मानना है कि एमआरआई मशीन का जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही सफोकेटिंग होता है, अंदर बहुत घुटन महसूस होती है। और इसी के तहत जब उनको घुटन महसूस होती है तो, लेकिन हम लोग बड़े हैं, हम लोग 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वी आर एडल्ट्स, सो वी अंडरस्टैंड कि ठीक है घुटन को सह सकते हैं, क्योंकि घुटन सहने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसमें से क्या कहते हैं रीडिंग्स आएंगी, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होंगी, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन 7-8 साल के बच्चे शायद नहीं समझ सकते, राइट। और आप सभी जानते हैं जब बच्चों को कोई चीज पसंद नहीं आती है तो आप जबरदस्ती उनसे नहीं करा सकते, एंड दे विल स्टार्ट थ्रोइंग देयर हैंड एंड सो ऑल काइंड ऑफ टैंट्रम, दे विल बिकम मेक इट वेरी नॉइजी एंड स्केरी एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो यही हुआ यहाँ पे। डग डिएट साहब ने जब एमआरआई मशीन बनाई तो जब बच्चों को एमआरआई मशीन पे ले आया जाता था तो बच्चे उस घुटन को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और बहुत ही खराब लगता था, और जाहिर सी बात है बच्चों को फिर बेहोश करके एमआरआई मशीन के अंदर लेके जाना पड़ता था। एंड बच्चों को बेहोश करने का जो प्रोसेस होता है, आई कैन टेल यू, ये किसी भी पेरेंट के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत ही अच्छा साइट नहीं होता है, एंड इट इज वेरी स्केरी and because especially all the kids were forcefully sedated, जबरदस्ती जब उनको बेहोश किया जाता था तो ये साइट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो इसके लिए डग डिएट साहब ने एक छोटा सा सीटी पायरेट आइलैंड एडवेंचर इन्वेंट किया, इनोवेट किया, राइट। और इसको इनोवेट किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको छोटे से इस पूरे एमआरआई स्क्रीन को एक पायरेट शिप की तरह उन्होंने एक फेस दे दिया। पायरेट शिप का जो चेहरा देने का दिया, उसके लिए क्या किया उन्होंने, जैसे आपने देखा कार्टून के कैरेक्टर्स बनाए, उन्होंने उसको बहुत कलरफुल बना दिया, और जो एमआरआई मशीन थी उसको एक पायरेट शिप की तरह दे दिया, एंड इट वाज मेड टू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एंड इस एक्सपीरियंस को जैसे कन्वर्ट किया तो जो बच्चे अंदर आते थे वो ये नहीं देखते थे कि इसके अंदर घुटन होगा, उनको ये महसूस होता था कि जैसे ही हम अंदर जाएंगे इट इज गोइंग टू सम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, एंड जैसे ही उन्हें एक्सपीरियंस होने लगा दे ऑल वर वांटिंग टू गो देयर रिपीटेडली, वो बार बार उसमें जाना चाहते थे, और बार बार जाने की वजह से क्या हुआ, जो अभी तक एक बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस होता था, which used to be a very terrifying experience for the kids, now it was converted into a wholesome experience. Now for the kids it was a new experience altogether, और इसका रिजल्ट क्या हुआ,
Kids loved the new experience, and quite a few of them actually wanted to keep coming back. Parents were also relieved, doctors were also relieved, and the entire staff of the hospital was also relieved. And the sedation rate, पहले 100 में से 80% बच्चों को फोर्सफुली बेहोश करना पड़ता था, अब मात्र इसके बाद 10% लोगों को ही सेडेट करना पड़ा, राइट? तो एंड द एंटायर प्रॉब्लम वाज नाउ सॉल्व्ड, एंड इट वाज beneficially both to the hospitals and the parents, not only in behavior but also commercially, right? So this is a pirate ship, which was, this is the MRI screen which was converted into a pirate ship, right? So basic nature नहीं change हुआ, लेकिन थोड़े से subtle changes करने के बाद पूरा experience change हो गया, right? So this was an example of design thinking. एक और example जरा लेते हैं, जरा share करते हैं. This is called a Swiffer by PNG. स्विफर आप देख रहे हैं, जैसा इसमें वाइपर की शेप दी हुई है और नीचे एक पोछा लगा हुआ है. तो मैं आप सभी लोगों से समझ सकते हैं कि आजकल के लॉकडाउन में हम सभी जानते हैं पोछा लगाने से क्या हाल हो रहा है. आज सभी लोग इस चीज को से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं. घर के काम मेरे ख्याल से हर व्यक्ति कर रहा है. तो आप सभी जानते हैं, समझ सकते होंगे कि जब भी घर में मॉबिंग की जाती है, फ्लोर मॉबिंग होती है, या शुद्ध हिंदी में जिसे हम कहते हैं जब पोछा लगाया जाता है, तो जब फ्लोर मॉबिंग का कार्य होता है तो इस कार्य में सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है कि जब हम पोछे से या कपड़े से फ्लोर को मॉप करते हैं तो थोड़ी ही देर में कपड़ा गंदा हो जाता है, राइट? और बार बार कपड़े को धोना पड़ता है, राइट? सो मॉबिंग द फ्लोर is not such a tedious job. The more tedious job is cleaning the cloth repeatedly. बार बार कपड़े को साफ करना पड़ता है और कपड़े को धोना पड़ता है, राइट? और कपड़े को साफ करने और धोने की वजह से जो मॉबिंग द फ्लोर का जो काम होता है और द स्विफर का जो काम होता है बड़ा टीडियस हो जाता है, बड़ा ही कंपरसम टाइप का हो जाता है. सो जब इस चीज को 1990 में देखा पीएनजी के साइंटिस्ट ने और इंजीनियर्स ने, तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डाला, एंड द कॉन्सेप्ट वाज कॉल्ड रेजर एंड ब्लेड टेक्निक. रेजर एंड ब्लेड टेक्निक ऐसे ही, जैसे आप सभी जानते हैं, हम लोग सभी शेव करते हैं, स्पेशली द मेन. तो जब शेव करते हैं तो आप जानते हैं कि एक छोटा सा बटन दबाते हैं और ब्लड और ब्लेड बाहर आ जाता है, और उसको धीरे से डालते हैं तो ब्लेड अंदर आ जाता है, राइट? तो सेम टेक्निक वाज अप्लाइड फॉर स्विफर, और रेजर ब्लेड टेक्निक का बिजनेस मॉडल डाला गया, जिसमें जो हैंडल था वो बहुत ही सस्ता और बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे आता था. और उसके बाद the mobber was given and attached to the handle, and the mobber has certain facilities, certain qualities, because of which the dirt and dust can be absorbed very fastly, and a person can actually in one go a person could clean approximately 2000 square feet of floor without getting dirty, right? और 2000 square feet मतलब पूरे घर की सफाई एक बार में हो गई, और एक बार में पूरे घर की सफाई हो गई. एंड देन द क्लीनिंग वाज आल्सो वेरी इजी. वी जस्ट हैड टू पुश अ बटन और वो कपड़ा बाहर आ जाता था. देन इट कुड बी केप्ट इनसाइड, एंड अगेन आफ्टर व्हेन यू वांट टू यूज इट यू कैन जस्ट अटैच इट, राइट? सो इसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द क्लीनिंग टाइम. जो सफाई का समय था उसमें काफी कमी हो गई, और क्लीनिंग के बाद मेंटेनेंस का भी काम बहुत कम हो गया. और दिस वाज अ डिसरप्टिव इनोवेशन एट इट्स बेस्ट. और इसके बाद ब्रांड जो था ये पीएनजी का, इट बिकम $500 million ब्रांड, एंड इट went up to 15 different countries, right? So this was a Swiffer by PNG. और अभी हमने एक एग्जांपल देखा हेल्थ इंडस्ट्री का, ये हमने एग्जांपल देखा हाउस होल्ड इंडस्ट्री का. जरा एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट? This is example about the tourism industry, and we are from tourism industry. Tourism industry में आप सभी लोगों ने Airbnb का नाम सुना होगा, right? Airbnb जो है, इसके बारे में अगर हम और आगे आपसे बात करना चाहें तो मैं जल्दी से इसको स्टॉप शेयरिंग करूंगा, and I'll go back to the sheet, and मैं आपसे सवाल ही पूछूंगा. Do you trust me? Give me an honest answer. Do you trust me? You can keep your answer on the chat box. Yeah, Himanshu. Okay, thank you very much. Thank you, Disha. Thank you, Nidhi. Thank you, Kunal. Thank you. Okay. Thank you, Akansha. Thank you, Rishabh. Thank you, Harshit. Thank you, Pawan. Thank you, Rishabh. I have not known you for long today. Fantastic, right, Rishabh? I am 100% with you on that, right? Maybe, Kainat, exactly. All your responses are actually when perfectly all right and acceptable, because the moment I talk about you, I've been talking to you for like 15 minutes. So if I ask you, do you trust me? So if you don't trust me, there's nothing wrong in that.
So there are varied responses. Some may say that I trust you. Some may say that I've been talking to you only for last 15 minutes. How can I trust you? And some may say, oh, well, sir, I don't trust you at all. So there can be varied responses because you don't trust me. I'm just a stranger for you. For last 15 minutes, I've been talking about design thinking, right? So people don't trust strangers, right? And in the books, it has been said, don't trust the strangers, right? Our parents have told us, don't trust strangers. But Airbnb ne kya kiya? Airbnb has gone to design thinking practitioners and they have evolved such a fantastic platform, such a fantastic use of technology they have done, that now people have started to trust the strangers. Whom do you trust? In Airbnb, we trust someone else who has stayed in this hotel. He stayed in the property and his reviews, and we trust reviews of strangers. Similarly, not only we trust the reviews of the strangers and go to live in that property, we also let strangers live in the property, because in Airbnb, we are also lending our property, right? We are lending our property to the stranger. We are lending our bedroom to the stranger. We are lending our drawing room to the stranger. We are asking a stranger to come in the kitchen and do the job. हम अपना घर जिसको हम कितने मजे से प्यार से सजोते हैं उसको एक स्ट्रेंजर को दे रहे हैं रहने के लिए, और जबकि थोड़ी देर पहले भी आपने कहा यस यू डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स. तो Airbnb ने क्या किया कि Airbnb used design thinking and it gave a platform in such a way that people started trusting strangers, and this process was called monetizing trust. और ट्रस्ट को उन्होंने मोनेटाइज किया with the help of design thinking and the kind of questions they asked, and based on the kind of questions they asked and the answers they gave, we started to trust the strangers. There were a few chats. I'd definitely like to know what's there in the chats. The latest one, Airbnb gives local experience, homestay, home life feeling. Yes, Ivanshu, yes, Nidhi, you're absolutely right. And how do they give it? They are making us trust the strangers, and that's what they have done. So I'll just quickly share this pics with you. Kidhar gaya? Yeah. People. Yes, present now. And here comes the window. Why is this not coming? Yes, Airbnb conceptualized a platform that will allow people to trust strangers and rent their own spaces to them. And with the help of this design thinking and trusting the strangers, Airbnb became the leader in its category. Valued at about $40 billion, Airbnb absolutely has no properties and assets. और ये Airbnb ने कैसे किया? बिना किसी property और बिना किसी assets के. And it has till now served 150 million guests, and it is present in 65,000 cities. Right, so that is some kind of design thinking which Airbnb has done. Now we are going to talk about something about Airbnb. हमने tourism industry की बात की. हम जरा social sector में आते हैं, right? And social sector में आते हैं, and we are going to talk about low cost incubators. लो कॉस्ट इंक्यूबेटर्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में. डेवलपिंग कंट्रीज में समस्या ये होती थी कि जो बच्चे जो होते थे, जो शिशु मृत्यु दर होता था, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता था, दैट यूज्ड टू बी वेरी हाई. और लो कॉस्ट उसका लिए होता क्या था कि उसका सबसे बड़ा रीजन होता था हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया वो बीमारी होती है जहां पे जब छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं, दे कम आउट ऑफ द वूम, और जो शरीर के अपनी माँ के अंदर के जो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है और जो बाहर का टेम्परेचर होता है, इसके डिफरेंस को जो कमजोर बच्चे होते हैं अक्सर वो सह नहीं पाते हैं. दिस कम टू दैट डिफरेंस इन एटमॉस्फेयर, राइट, एंड दे डाई विद इन 24 आवर्स ऑफ द डेथ. तो इसके लिए एक इंक्यूबेटर होता है जिसकी वजह से, जिसके साथ हम उस चीज को प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि जो कमजोर बच्चे होते थे वो ज्यादातर गांव या देहात में होते थे, और रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री में इंक्यूबेटर्स को सर्व करना बड़ा मुश्किल होता था, इंक्यूबेटर्स वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था. तो होता क्या था कि जो बच्चे थे
वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए एक लो कॉस्ट इंक्यूबेटर बनाया गया, और लो कॉस्ट इंक्यूबेटर बनाने के लिए क्या किया, एक छोटा सा पैराफिन बेस पाउच बनाया गया जिसको एक हीटर के साथ गर्म कर दिया जाता था। एक बार गर्म किया तो इसकी जो वार्मथ है वो 4 घंटे तक मेंटेन रहती थी। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट इसको कैरी करना आसान था। इसको कैरी करना इतना आसान था कि द वे यू कैन एम्ब्रेस ए चाइल्ड, जिस तरीके से आप बच्चे को इस तरीके प्रकार गोद में ले सकते हैं, इसी प्रकार इस इंक्यूबेटर को भी गोद में ले सकते थे। एंड दिस वाज कॉल्ड द एम्ब्रेस इन्फेंट वार्मर। एंड इट वाज इतना इजी था, इसका नाम ही एम्ब्रेस पड़ गया। और इसकी कॉस्टिंग जो थी वो एक्चुअल इंक्यूबेटर से 99% कम थी, राइट। सो यहाँ पे आप फिर से देखिए कि एक बार फिर से डिजाइन थिंकिंग का यूज किया गया, एंड विद द हेल्प ऑफ डिजाइन थिंकिंग वी आर एबल टू सेव द लाइव्स ऑफ so many infants, and it has already saved lives of millions of kids, and it is still saving lives of millions of kids, right? So इस प्रकार से डिजाइन थिंकिंग का जो हमारा प्रयोग है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें शेरिडन के बारे में, तो शेरिडन का जो यहाँ लंबी चौड़ी बात बनी है वो तो एक अलग है, लेकिन आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं शेरिडन का शेयर करूंगा। दिस इज अबाउट जब मिस्टर हिल्टन आप सभी जानते हैं, हिल्टन का अपना ही चेन ऑफ होटल्स है। ही विजिटेड शेरिडन वंस, और वहां पे उन्होंने देखा द रिसेप्शनिस्ट एट शेरिडन होटल, शी वाज एक्चुअली जो भी कस्टमर आ रहा था, जो भी उनके यहाँ पहले रेजिडेंट्स आ रहे थे, जो रह चुके थे, उनको जो दोबारा आता था उनको शी यूज्ड टू से वेलकम बैक सर। अब मिस्टर हिल्टन वाज वेरी सरप्राइज्ड, ये वेलकम बैक कैसे कह रहे हैं? हाउ डज द रिसेप्शनिस्ट अंडरस्टैंड्स एंड रिमेंबर्स every customer who has stayed here earlier? So he was very surprised, and he went to the receptionist and said, "Dear madam, I'm Mr. Hilton from the Hilton Group of Hotels. I want to know one thing." अब जाहिर सी बात है, मिस्टर हिल्टन है तो जाहिर सी बात है कोई उनसे मना नहीं करेगा। तो रिसेप्शनिस्ट से, "यस सर, व्हाट कैन आई टेल यू?" बोले, "मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब भी कोई कस्टमर आता है और यहाँ पहले स्टे कर चुका होता है, आप उनसे कहती हैं वेलकम बैक। How do you know if this customer has stayed here earlier?" तो लेडी said कि right in front at the straight eye there was a guard who was standing at the gate. तो जो गार्ड था वो गार्ड जो कस्टमर भी आता था उस कस्टमर से पूछता था, "सर, this is your first visit or you have stayed here earlier?" तो जैसे ही कस्टमर कहता था I have stayed here earlier, वो गार्ड एक धीरे से इशारा कर देता था रिसेप्शनिस्ट की तरफ। And this is how receptionist was able to understand that this customer has stayed here earlier, and because of which she used to say welcome back sir. And welcome back sir का मतलब क्या होता है कि it means that a customer is remembered, the customer is still remembered। और जिस कस्टमर से कहा जाता था वेलकम बैक, he used to say very nice, thank you ma'am, but how do you know, right? So एक कस्टमर सर्विस को, एक एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस देने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा इंतजाम किया था उस लेडी ने, एंड दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग। ये एग्जांपल मैंने खास करके इसलिए दिया बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड that design thinking is not done only by the organizations, but is also done by the human beings who are working in the organization, right? So these are a few examples of design thinking. So with those examples of design thinking, I will like to understand as to what is design thinking, what is this all about, who is behind this, why are we doing this, and how did it get started, and where are we going, right? So अब जरा design thinking को समझने की कोशिश करते हैं, and what design thinking is, right? सो डिजाइन थिंकिंग को जरा समझते हैं और देखते हैं डिजाइन थिंकिंग क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे डेफिनेशन वाला पेज तो खैर शायद मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेट मी सी वेयर द पेज इज डेफिनेशन वाला। डेफिनेशन वाला पेज आने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट डिजाइन थिंकिंग इज। आई विल स्टॉप शेयरिंग इट एंड गो बैक टू माय पेज, राइट। तो डिजाइन थिंकिंग अगर समझते हैं तो समझने के लिए डिजाइन थिंकिंग इज अ स्ट्रैटेजी, वी हैव इज अ स्ट्रैटेजी which is used by professional designers, right? Professional designers कौन होते हैं? जैसे people who have designed Delhi Metro or people who have designed Lucknow Metro, right? These are the people who are professional designers, right? So जब हम professional designing कोई भी करते हैं तो whenever we do professional designing, we have to undergo lots of problems. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि जब दिल्ली मेट्रो डिजाइन की गई होगी या जब लखनऊ मेट्रो डिजाइन की गई होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को उन प्रोफेशनल डिजाइनर्स ने कैसे एराडिकेट किया, किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, राइट। सो डिजाइन थिंकिंग इज एन अप्रोच व्हिच इज डेवलप्ड on the basis of the approach which is applied by the
प्रोफेशनल डिजाइन थिंकर्स, और उन अप्रोचेस से हम एक अपना पूरा वे ऑफ वर्किंग बनाते हैं, एक हम अपना तरीका बनाते हैं, और दैट वे ऑफ वर्किंग विच वी डिजाइन विद द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल डिजाइन, जो उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं उससे हम जो एक तरीका काम करने का बनाते हैं उसको हम डिजाइन थिंकिंग करते हैं। और डिजाइन थिंकिंग के जरिए हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में आती हैं, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारी सोशल लाइफ में भी आती हैं, और उसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रैटेजीज विच आर यूज्ड बाय द प्रोफेशनल डिजाइनर्स। और उन स्ट्रैटेजीज को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में और अपनी प्रोफेशनल डिजाइन में यूज करते हैं, एंड दैट अप्रोच इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग, राइट। तो डिजाइन थिंकिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में और जरा जानने की कोशिश करते हैं, और जरा इसकी डेफिनेशन कहाँ गई, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट इधर गई, yes, here it comes, right? So design thinking refers to the creative strategies designers use during the process of designing, right? So जो creative strategies designers use करते हैं डिजाइनिंग की प्रोसेस में, उसको हम डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। और there is an approach which has been developed on those creative strategies, and this approach to resolve issues outside the professional design practices, right? तो प्रोफेशनल डिजाइन प्रैक्टिस के बाहर जो अप्रोच यूज की गई है, और उसको, और जैसे कि बिजनेस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, जब हम प्रोफेशनल डिजाइन प्रैक्टिस के बाहर इन क्रिएटिव स्टडीज को यूज करते हैं, तब हम इस प्रोसेस को डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। और अगर हम डिक्शनरी में देखें तो डिजाइन थिंकिंग का मतलब होता है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, राइट। सो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इसीलिए होती है बिकॉज जो क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज हमारे डिजाइनर्स यूज करते हैं, वो क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज बहुत ही अनकॉमन होती हैं, और उसमें हम सारी चीजों को अपने कंसिडरेशन में लेते हैं। और जब हम सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेते हैं और एक अप्रोच डेवलप करते हैं, तो उस अप्रोच को हम डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं, राइट। तो दिस इज, और अगर आप इन सभी एग्जांपल्स में देखें, चाहे हम आप बात करें पायरेट शिप की, चाहे हम बात करें लो कॉस्ट इंक्यूबेटर की, चाहे हम बात करें स्विफर डिजाइन बाय पीएनजी की, चाहे हम बात करें अबाउट एयरबीएनबी, इन सभी में देयर वाज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजी व्हिच वाज यूज्ड। एंड बिकॉज क्रिएटिव स्ट्रेटजी यूज करने से पहले सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था। और डिजाइन थिंकिंग के बारे में ये भी कहा जाता है, डिजाइन थिंकिंग इज अ वेरी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। तो डिजाइन थिंकिंग क्योंकि बहुत ही ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, तो यहाँ पे डिजाइन थिंकिंग क्योंकि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग को समझ सके, ये हम समझ सके कि ह्यूमन बींग्स का काम करने का तरीका क्या है और ह्यूमन बींग्स किस तरीके से काम करते हैं, राइट। सो डिजाइन थिंकिंग के कुछ प्रोसेस समझ लें, तो डिजाइन थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो ये है, राइट। तो सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग 5 स्टेप्स या 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हम एम्पैथाइज करते हैं, देन वी डिफाइन, देन वी आइडिएट, देन वी प्रोटोटाइप एंड देन वी टेस्ट, राइट। तो ये 5 स्टेजेस होते हैं डिजाइन थिंकिंग के, और ईच एंड एवरी स्टेज आई मस्ट टेल यू इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और जब हम इनके बारे में डीप डाइव करते हैं, तो डीप डाइव का तो खैर समय 1 घंटे में नहीं है, लेकिन हाँ, जब डीप डाइव करते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसी डिजाइन थिंकिंग के जो मेथड्स हैं, इसके बाद क्योंकि सबसे पहला अगर आप यहाँ पे स्टेप देखें तो दैट इज एम्पैथाइज। एम्पैथाइज मतलब क्या होता है? एम्पैथी माने कि जब हम लोगों से उनके शूज में जाके सोचते हैं या उनको हम बेहतर समझ सकते हैं। और एम्पैथाइज अगर हम करेंगे तो एम्पैथी करने के लिए हमें लोगों के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी होगा, ह्यूमन बिहेवियर्स को समझना बहुत जरूरी होगा, राइट। सो अभी मैंने आपको क्या किया, in first half an hour I have given you an introduction of design thinking with a definition of it with the 5 stages। और इसमें सबसे जो फर्स्ट स्टेज which is coming is empathize। और जब हम empathy की बात करते हैं तो empathy you all understand it's all about human behavior and is human centric। Empathy is the most important driving factor and driving emotion of design thinking, right? So after before I move forward I'll go back to the chat box और मैं आप सबसे पूछूंगा any questions till now? I'll definitely ask some questions. Any questions from the chat box? You can type the questions, or if there are no questions, you can type GTG, that is good to go, or the short form of good to go.
PPT is not coming. Okay, I'm not showing PPT. That's why it's not coming. If you want to show the, okay, I'll definitely show the PPT. Good to go. Thank you, Disha. Thank you. I will definitely show the PPT to you. Oh. किधर गई PPT? Good to go. This is the PPT. Yes, you can see the PPT. These are the 5 stages of design thinking. The first is empathize, the second is define, the third is ideate, the fourth is prototype, and the fifth is testing. Empathize mein we try to understand the feeling of the person, what the person is saying, what the person is feeling, what is the problem of the customer, right? So bina problem ko identify kiye bina design thinking is not possible. Define mein we define the problem, we actually shortlist the problem, right? In ideate section we try to look at the ways and means in which we can actually solve the problem. In prototype we actually design the solution, and in testing we give it to the ultimate customer, right? These are the 5 stages of design thinking. और क्योंकि जब पहला स्टेज है, जैसे मैंने आपको बताया था, एम्पैथी, और एम्पैथी अगर हमारा पहला स्टेज है तो हमें बहुत जरूरी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड as to what kind of design thinker we are or as to what kind of human being we are, right? तो इसको समझने के लिए, एम्पैथी को समझने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे, and we must understand as to what kind of design thinker we are. To understand what kind of design thinker we are, so I'm going to stop sharing this, और मैं अपने वर्कशॉप पे वापस आता हूँ. I can show you my face. और जब हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार का, और इसी जब एम्पैथी में हम बात करेंगे what type of design thinker you are, we are going to talk about the human behavior, right? तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं. जब उसको समझते हैं तो उसको समझने के लिए पहले हमें यह देखना पड़ेगा किस प्रकार के हमारे 4 बिहेवियर होते हैं. तो 4 अगर हम बिहेवियर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक यहाँ पे पेज बनाया है, और उसमें देयर आर 4 काइंड ऑफ बिहेवियर्स. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बिहेवियर, तो सबसे पहले अगर आप देखें, वी कैन हैव द लुक एट दिस. तो हमारा बिहेवियर एक किसी भी गिवन सर्कमस्टेंसेस में, either it is going to be an active behavior or it is going to be a passive behavior, or it is going to be a hostile behavior, or it is going to be a friendly behavior, right? So इन 4 बिहेवियर्स को अगर हम समझना चाहें तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल हम लेते हैं, दिस इज अबाउट, फॉर इंस्टेंस यू आर ड्राइविंग विद अ कार ऑन योर कार ऑन द रोड, और जैसे आप कार से रोड पे जा रहे हैं तो एकदम से एक कैब वाला जो है, टैक्सी वाला है, वो राउंड अबाउट पे आता है, और वो धीमे से आपकी गाड़ी के आपने सामने अपनी गाड़ी ले आता है, और इतनी तेजी से गाड़ी लाता है कि आपको अपने गाड़ी पे ब्रेक्स पे ऑलमोस्ट खड़ा होना पड़ता है, तब जाके आपकी गाड़ी रुक पाती है, राइट? सो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई, सामने कैबी है, वो अपनी टैक्सी को लेकर आया है, और यहाँ पे आपकी गाड़ी है, और आपने उस गाड़ी को किसी तरीके से रोक दिया, राइट? तो यहाँ पे 4 किस्म के बिहेवियर्स होंगे जो कि आप एग्जिबिट करेंगे. जो पहला बिहेवियर होगा वो होगा, या तो आप एक्टिव होंगे, या पैसिव होंगे, या हॉस्टाइल होंगे, या फ्रेंडली होंगे, राइट? तो इसी बिहेवियर को थोड़ा हम और आगे समझते हैं तो हम यहाँ पे ये समझ में आएगा कि these are the 4 kind of behavior we will exhibit. Either we are going to be active and hostile, or we are going to be active and friendly, or we are going to be passive and friendly, or we are going to be hostile and passive, right? तो जो ये 4 किस्म के बिहेवियर्स हैं, इनको समझने के लिए चलिए आपको वापस उसी जगह पे लेके चलते हैं जहां पे ये वाकया हो रहा है. तो वाकया अगर यहाँ पे हो रहा है, सामने से इधर से एक गाड़ी आई और यहाँ से आपने जैसे उसको रोका, तो एक बिहेवियर अभी आपके सामने मैं थोड़ा एग्जिबिट करने का प्रयास करता हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम शीशा नीचे करेंगे और सामने टैक्सी वाले से कहेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है? तुम जानते हो मैं कौन हूं? अभी 1 मिनट में तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा. तमीज नहीं है तुम लोग गाड़ी चलाने की, पता नहीं किसने तुम्हें लाइसेंस दे दिया. This is one behavior, right? What kind of behavior is this? This is hostile and active, right? He is very active. He is actually शीशा नीचे करके बाहर निकले. He is actively participating in the communication, right? And this is active. And the way he is speaking,
He has got a very eyes are coming out. He's got an arrogant way of speaking. He's actually telling the person no, that he's angry, he's hostile, right? So this was active and hostile behavior, right? So अभी और इसको आगे समझते हैं. ये पहला बिहेवियर था. दूसरा बिहेवियर, हम शीशा नीचे करेंगे. भाई साहब, ये कैसी गाड़ी चला रहे हैं आप? भैया, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स का तो पता नहीं. मेरी जो हड्डियां हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं. थोड़ा भाई आराम से गाड़ी चलाया करो. गाड़ी तो अपनी सही हो जाएगी, लेकिन अगर अपने चेहरे का और अपने हाथ पांव का ज्योग्राफिया बिगड़ गया तो मुझे नहीं लगता है कि अपने स्पेयर पार्ट्स कहीं मिलेंगे. तो भाई जरा देख से चलाया करो. साथ में तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, हमारे भी घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे. ये पब्लिक इतनी है, इनको भी चोट लग सकती है, तो भाई थोड़ा ध्यान से चलाया करो, राइट? सो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर वाज दिस? राइट अभिषेक, एब्सोल्युटली राइट. दिस वाज एक्टिव plus friendly behavior. This was absolutely active and friendly behavior. तो यहाँ पे उसने दूसरा तरीके का बिहेवियर हमने एग्जिबिट किया, and this is active and friendly. अब तीसरा बिहेवियर आ रहा है. जैसे ही ड्राइवर सामने आया, उसने गाड़ी सामने लगाई, हमने ची करके ब्रेक लगाया, किसी तरीके से एक्सीडेंट बचाया. शीशा नीचे किया, अपनी गाड़ी देखी, ड्राइवर को देखा, उससे कहा तुम जाओ. हमने भी गाड़ी में बैठे, बोले कौन फालतू में झगड़ा करे, राइट? अपनी गाड़ी निकाली, तुम्हारी भी जय हो, हमारी भी जय हो, ना तुम जीते ना हमारे. भैया आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, राइट? व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? दिस इज passive and friendly behavior. So this is called passive and friendly behavior. This is the fourth behavior, which is, yes Abhishek, absolutely right, passive and friendly. अब यहाँ पे एक चौथा बिहेवियर आता है. This is passive and hostile behavior. फिर से यही हुआ, गाड़ी आई, हमने ब्रेक लगाया, और जैसे ही हमने शीशा नीचे किया, बाहर देखे, गाड़ी में देखा कितना नुकसान हुआ है, कोई नुकसान तो हुआ है नहीं हुआ, और आई एम एब्सोल्युटली पासिव टू द पर्सन. मैंने ड्राइवर से कोई बात नहीं की, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तुरंत फोन लगाया 112 पे फोन लगाया. इसका मतलब आई कॉल्ड अप द पुलिस मैन. और पुलिस में हमने कॉल किया, तो हमने तुरंत पुलिस को फोन किया, सर देयर इज अ व्हीकल व्हिच इज नॉट ड्राइविंग द राइट मैनर. उसके पास मैंने देखा कि वो ठीक दशा में भी नहीं है, और मुझे लग रहा है वो गलत तरीके से ड्राइव कर रहा है, एंड आई थिंक इस तरीके के लोगों को सड़क पे छोड़ना नहीं चाहिए. प्लीज कम एंड प्लीज अरेस्ट हिम, राइट? एंड दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट passive, hostile and passive behavior. इस बिहेवियर में he is hostile and passive. Passive इसलिए है क्योंकि he is not talking to the driver. वो कैब ड्राइवर से बात नहीं कर रहा है, but he is actually hostile. वो उसके लिए कुछ अच्छा भी नहीं कर रहा है. जाहिर सी बात है, जब पुलिस आएगी या जब पुलिस वहां पे आएगी, तो वो उस ड्राइवर के साथ किसी भी तरीके से अच्छा बर्ताव नहीं करेगी, राइट? So this is the hostile and passive behavior, right? So there's a question, right? Should I go to the question? The question is, so what is the suitable characteristic behind in the circumstances then according to you, sir? Niharika, I will just tell you what is the suitable and what is suitable not, right? तो actually देखा जाए तो यहाँ पे कुछ suitable और not suitable नहीं है. It is about the behavior. Just like your beliefs, your attitudes, there is nothing right and wrong. It is about you as a behavior. While I'll tell there is nothing right and little suitable or not suitable. For instance, यहाँ पे हमने 4 तरीके के behavior अभी exhibit किए. There are 4 kinds of behavior which are exhibited by a person. One is the hostile and active. बता देंगे अभी तुम्हें 2 मिनट में क्या है. Otherwise, अरे भाई इधर देख के चलाओ. The third one was तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ. And the fourth one was फोन कर लिया, right? So इसमें कुछ गलत और सही नहीं है. Why I'll say गलत और सही क्यों नहीं है? इसको समझने के लिए निहारिका and all the other friends, let's do an activity. अपने हाथ को जरा ऐसे बिल्कुल फैलाते हैं और आराम से पूरी अंगड़ाई लेते हुए let's एक ऐसी ग्रिप बनाते हैं. Please make a grip like this and I'll give you 10 seconds for that. आराम से हाथ को expand करिए and make a grip like this. Form a grip. Form a grip like this, right? Once you have formed a grip like this, my question to you is that who has got the left thumb on the top and who has got the right thumb on the top?
Tell me who has got the left thumb and the right thumb on the top. Form a grip like this. Nidhi says right thumb. Hassan Mirza says left thumb. Yes, on the top. This is the one on the top. Left thumb, right thumb, right thumb, left thumb, left thumb, right thumb, right, left, right, left, right, left. Right. So if I say having right thumb on the top is right or having left thumb on the top is right, there is nothing right and wrong in that. It is just like our our instinctive behavior, right? So ये behavior करने के लिए किसी को कोई एक extra effort नहीं करना पड़ेगा. It is just by the natural instinct, right? So Niharika, what we are trying to understand here, we are trying to understand about the human behaviors. We are not trying to understand as just what is the right and what is the wrong behavior. So ये जो behaviors होते हैं ये इतने ही natural होते हैं जितना natural हमारा thumb यहाँ पे रखना होता है. तो हमने ये थंब रखने से पहले कुछ सोचा या समझा नहीं था. It just came as it, right? So it is the right and the left thumb. So it is the innate behavior. क्यों innate behavior होता है? Because हर व्यक्ति के अंदर एक चाह होती है और वो चाह जो होती है, जो innate behavior की जो एक चाह होती है, वो हमें उस behavior के लिए आगे enforce करती है. And now we'll try to understand what is that innate behavior or what is the innate liking, right? तो सबसे पहले जो व्यक्ति था यहाँ पे जो जिसने अपना हॉस्टाइल और एक्टिव बिहेवियर डिस्प्ले किया था, उसकी चाह होती है टू से दैट आई एम राइट, दिस इज द वे, राइट? इफ आई थिंक दैट आई एम राइट देन आई एम गोइंग टू बिहेव लाइक दिस पर्सन, दैट इज हॉस्टाइल एंड एक्टिव, राइट? दूसरा होता है इज लाइक मी, मुझे पसंद करो, राइट? This is the innate requirement of the person who is active and friendly. ये चाहता है मुझे पसंद करो. तो जो चाहता है मुझे पसंद करो वो किस तरीके से बात करेगा? भाई देखो मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ, मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ, लेकिन देखो इस सिचुएशन में भी मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ. आई एम स्टिल बिहेविंग विद यू इन अ प्रॉपर मैनर. सो यहाँ पे जो चाह होती है दैट इज लाइक मी. इनकी जो भाई साहब की चाह थी दैट इज आई एम राइट. तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं जो कह रहा हूं वो बात सही है, राइट? So it is the why is the behavior done? Is this done because we have got an innate requirement in ourselves? जो तीसरे भाई साहब हैं इनकी चाह क्या है? Accept me. भैया मैं जैसा हूं मुझे आप वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए, आप अपने रास्ते जाइए मैं अपने रास्ते जाऊँ, राइट? His requirement is accept me. I am not going to be disturbed. मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूं अपने लाइफ में, राइट? And the fourth person that is investigator, he says उसकी इनेट चाह है डूइंग थिंग्स राइट. वो चाहता है कि सही तरीके से काम करूं और वो सही तरीके से काम करना चाहता है, इसलिए वो कहता है, वो तुरंत उसके दिमाग में चल जाएगा इससे बात करना ठीक नहीं होगा, अगर मैं इससे बात करूंगा तो हो सकता है मुझसे कुछ गलत बोले. तो व्हाट आई शुड डू इन दिस सिचुएशन द राइट थिंग इज टू कॉल अप द पुलिस. तो उसकी चाह ये है कि डूइंग द राइट थिंग्स. तो ये तीन चाहते हैं जो आदमी के अंदर आ रही हैं और जो हमें उस ह्यूमन बिहेवियर के लिए एग्जिबिट कर रही हैं. और ये क्या है? ये भाई साहब डोमिनेट करना चाहते हैं, ये भाई साहब इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ये भाई साहब शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और ये भाई साहब एनालाइज करना चाहते हैं, राइट? सो दीज आर द फोर बिहेवियर्स व्हिच आर एक्चुअली डोमिनेंट, व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग व्हाई वी आर बिहेविंग इन दिस मैनर. और हम जब यहाँ पे देखें तो इस व्यक्ति को हम कहते हैं ड्राइवर. This kind of behavior is called driver. This kind of behavior is called stirrer. This kind of behavior is called intruder, and this kind of behavior is called investigator. Right? तो यहाँ पे हमने 4 अभी behaviors देखे जो कि human beings ज्यादा करते हैं. इसको और समझने के लिए जरा हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक सिचुएशन और लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति सब्जी लेने जाता है, राइट? वी गो टू अ वेजिटेबल वेंडर, और वेजिटेबल वेंडर के पास जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम वो स्पेंसर्स और क्या कहते हैं अपने बड़े बड़े मॉल वाले वेंडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल सब्जी वाले के पास जाते हैं. तो अगर सब्जी वाले के पास जाते हैं तो ये जो ड्राइवर भाई साहब हैं जो कि हॉस्टाइल एंड एक्टिव हैं, ये क्या बात करेंगे? हाँ भाई ये आलू क्या हिसाब दिए? तो जो सब्जी वाला अगर बोलेगा भैया 60 रुपए किलो दिए हैं. 60 रुपए किलो आलू? व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? ये तुम लोगों की वजह से हिंदुस्तान की महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, राइट? लाओ अच्छा 1 किलो आलू दो, राइट? सो ही विल ट्राई टू मेक हिज प्रेजेंस फेल और बता देगा कि देखो मैं सही हूं, मैं सब जानता हूं,
तुम लोगों की सब गड़बड़ हो रहा है। लेकिन बाद में कहेगा चलाओ 1 किलो आलू दे दो, राइट? सो व्हाट इज ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट, ही इज ट्राइंग टू ड्राइव द एंटायर सिचुएशन। स्टरर साहब जो कि एक्टिव, ये क्या बात करेंगे, हाँ भाई सब्जी क्या हिसाब है साहब, 60 रुपए किलो है। भाई आप लोग भी अगर कहे 60 रुपए किलो सब्जी नहीं देंगे तो कैसे काम चलाएंगे? भाई कैसे आप काम चलाते हैं इतनी महंगाई में, किस तरीके से आपका घर चलता है? भाई भाई आपको भी देखो तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा, आपके भी घर बच्चे होंगे, बच्चे अच्छे कहाँ पढ़ते भाई तुम्हारे, राइट? सो ही विल स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन, ही विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस हिम, ही विल टेल देम दैट मैं भी देखिए अच्छा बंदा हूँ, राइट? तीसरे भाई साहब जो इंक्लूडर है, पीस जो चाहते हैं, वो कब सब्जी लेके आलू लेके पता लग जाएंगे, खरीद के चले भी जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा कि कौन आया था और कौन सब्जी लेके चला गया, राइट? अगर हम फोर्थ, अगर हम इन्वेस्टिगेटर को देखें, ये क्या करेंगे, ये भाई साहब जाएंगे, ये हर अलग अलग ठेले पे हर अलग अलग सब्जी वाले वेंडर से ये सब्जी लेंगे, किसी से पूछेंगे 60 रुपए किलो, किसी से 55 रुपए किलो, और ये साथ में ये भी देखेंगे कि जो वजन लगाया जा रहा है, जो वेट लगाया जा रहा है, वो 1 किलो ही लगाया जा रहा है, कहीं 1 किलो में ऐसा तो नहीं कुछ कम लगाया जा रहा है, वो तराजू के नीचे भी झांक के देखेंगे। वो क्या करेंगे, ये इन्वेस्टिगेटर है, he will try to understand each and everything, right? So these are the four kind of different behaviors which normally human being do. अब इन्हीं चारों बिहेवियर्स को जरा हम देखते हैं एक डिफरेंट सिचुएशन में। ये सिचुएशन है जब आप एलिवेटर पे या एक लिफ्ट में जा रहे हैं, तो अगर भाई साहब ये ड्राइवर भाई साहब एलिवेटर पे होंगे, इनको किसी की चिंता नहीं होगी, इनको अगर 6th फ्लोर पे जाना है, अंदर घुसेंगे, 6th फ्लोर का बटन दबाएंगे, और अगर कोई सामने खड़ा भी होगा, he will not let him side in, ये 6th फ्लोर का बटन दबा के सीधे 6th फ्लोर पे चले जाएंगे। बिकॉज इनका मकसद क्या है, ये हॉस्टाइल है और एक्टिव भी है, इनका मकसद सिर्फ अपने गोल से है, इनको ह्यूमन रिलेशंस के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी है। He is not there to make friends, he is not here to make relations, what he is all about is his goal। इनके लिए पैरामाउंट अपना गोल है, इनके लिए पैरामाउंट अपना ऑब्जेक्टिव है। He is just worried about his objective, his goal, he has got nothing to do with the human relationship। अगर ऐसा व्यक्ति के पास अब कभी आप जाएंगे और आप उनके पास पहुंचेंगे, तो उनका जो आपसे बात करने का तरीका होगा वो सबसे पहले यही होगा, यस व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ये आप बताइए किस काम से आए आप यहाँ पे, जल्दी बताइए, मेरे पास 5 मिनट है, आई डोंट हैव मच ऑफ अ टाइम। और अगर आपने बाई चांस इनसे कुछ इस तरीके से बोले, सर वो सर मैं जो सर इसलिए आया था, प्लीज नेक्स्ट टाइम लीव द रूम राइट नाउ, नेक्स्ट टाइम कम विद बेटर प्रिपरेशन, और अच्छी प्रिपरेशन के साथ आइए, तब आप मेरे से बात करिएगा, राइट? सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, ही डजंट वांट्स टू वेस्ट हिज टाइम, ही इज एन अचीवर। नॉर्मली इस टाइप के लोग ज्यादातर जो होते हैं, दे आर वेरी हाई अचीवर्स, और ये लोग जब होते हैं अचीवर्स, तो इनके पास टाइम बहुत कम होता है, और इनके पास जब आप सामने जाएंगे तो ये आपसे सीधे डायरेक्ट कम टू द टॉपिक, और आपसे पूछेंगे, हाँ बताइए व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, what is your reason for coming to this place? And the moment you say, well, you are fired and you are out of the room, and they will say, next time come with better preparation. They have got nothing to do with the feelings. ये 1 मिनट में आपको बता देंगे आपके अंदर क्या कमियां हैं, ये तुरंत आपको बता देंगे कि आप आज आपकी टाई अच्छे से नहीं लगी है, प्लीज टाई नॉट इन अ बेटर वे, राइट? सो they have got nothing to do with the feelings, ये सीधे आपको बता देंगे कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, राइट? सेकंड आते हैं स्टरर्स, they are active and friendly। इनके पास जैसे ही आप जाएंगे, हाँ भाई आओ, बहुत दिनों बाद आए भाई, जरा हमसे भी बात कर लिया करो कभी कभी, और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में तुम्हारी, सुना है तुम्हारे इस बार ग्रेड्स काफी अच्छे आए, गुड, दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, यू शुड स्टडी मोर, राइट? सो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, दिस इज एक्टिव बट फ्रेंडली। सो ये जो स्टरर्स हैं, स्टरर्स हमेशा आपके साथ बहुत फ्रेंडली बात करेंगे, आपको इन्फ्लुएंस भी करना चाहेंगे, एंड मेनी टाइम्स स्टरर्स बहुत अच्छे से बात करते हैं, इनका जो वे ऑफ ड्रेसिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है, दे वांट टू इन्फ्लुएंस यू, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, दे वांट टू एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स टू यू, राइट? दिस इज द स्टरर, दिस स्टरर फॉर यू। अब यहाँ पे आते हैं इंक्लूडर। जो इंक्लूडर होते हैं उनका बातचीत का तरीका क्या, हाँ बताइए, they will be very pleasant but they will be very short of words, वो ज्यादा बोलेंगे भी नहीं, वो आपकी बात का ज्यादा जवाब भी नहीं देंगे, और आपकी बात समझ भी जाएंगे, ठीक है आपकी सारी बात समझ में आती है मुझे, थोड़े दिन बाद आइएगा। दिस इज व्हाट इंक्लूडर इज गोइंग टू बी। और अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेटर की, इनके पास आप जब जाएंगे तो इनका बात करने का तरीका क्या होगा,
ये आपसे कहेंगे ये आपका टाइम है आने का, आपने कहा था आप 9:30 बजे आएंगे एंड यू आर कमिंग एट 9:35। सर वो 5 ही मिनट, 5 मिनट्स, यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ 5 मिनट्स। आप 5 मिनट का समय जानते हैं? 5 मिनट की वैल्यू क्या होती है? 5 मिनट में मैं दुनिया को पता नहीं कितने काम कर सकता हूँ। यू शुड ऑलवेज बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर टाइम। यस, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर वो मैं कहना चाहता था कि जो मैंने आपने टाइम टेबल मेरे को दिया था वो मेरे को लगने में अभी 2 घंटे और लगेंगे। 2 घंटे हो? व्हाई डू यू टेक सो मच ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल? बताइए जरा मेरे को 2 घंटे क्यों लगेंगे? राइट? सो दिस गाय इज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द डेटा, द फिगर्स एंड फैक्ट्स। राइट? अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा व्यक्ति कैसा है, तो जब आप ड्राइवर के रूम में जाएंगे या इसके वर्क स्टेशन पे जाएंगे तो इनके वर्क स्टेशन पे ट्रॉफीज रखी होंगी, इनके वर्क स्टेशन में मेडल्स होंगे, इनके वर्क स्टेशन पे इनकी जो अचीवमेंट्स होंगे वो रखे होंगे, और बहुत ही साफ सुथरा होगा इनका वर्क स्टेशन, आपको बिल्कुल गंदगी नहीं दिखाई देगी। जब आप इस तरह के वर्क स्टेशन पे जाएंगे तो इनके वर्क स्टेशन पे आपको पेपर्स फैले हुए दिखाई देंगे, इनके वर्क स्टेशन पे आपको बहुत सारा कागज फैला दिखाई देगा, लेकिन एक इनके पास फोटोग्राफ भी होगी जहां पे एमडी साहब के साथ, जब एमडी साहब ने इनके कंधे पे हाथ रखा था, वो वाली फोटोग्राफ वहां पे लगी होगी, और साथ में एक कोई बढ़िया सा कोट लगा होगा फ्रॉम अ वेरी फेमस डिजाइनर और फ्रॉम अ वेरी फेमस पर्सन। राइट? और जब आप इंक्लूडर के पास जाएंगे, उनके यहाँ एक कोने में एक फैमिली का फोटोग्राफ होगा, दे आर वेरी क्लोज टू देयर फैमिली, एक बच्चे के साथ एक फोटो होगा या वाइफ के साथ फोटो होगा। और जब आप जाएंगे इन्वेस्टिगेटर के पास तो इनके पास क्या होगा? इनके पास ग्राफिक्स होंगे, इनके पास डेटाज होंगे, इनके पास डिजाइनर्स होंगे, इनके पास सारे फैक्ट्स फिगर्स वहां पे रखे होंगे। राइट? सो दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ बिहेवियर। अब मैं यहाँ जरा ये थोड़ा 2 मिनट में बात करना चाहूंगा कि क्यों जरूरी है इन बिहेवियर्स को समझना। राइट? जब डिजाइन थिंकिंग के बारे में बात है, वी टॉक अबाउट एम्पैथी, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन थिंक्स। और जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर गोइंग टू डील विद। क्या हम सामने वाले से ड्राइवर है, सामने वाला स्टरर है, सामने वाला इंक्लूडर है, या सामने वाला इन्वेस्टिगेटर है? तो जैसा सामने व्यक्ति होगा वैसा हम अपना बर्ताव कर सकते हैं। वी कैन चेंज आवर बिहेवियर टू सूट हिज नीड्स। राइट? और यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने अंदर परिवर्तन करिए, but you can definitely bring some change to suit the requirement of that situation, and this is how we can definitely develop empathy. Right? So जो जैसे हमने अभी थोड़ा आपको डिजाइन थिंकिंग के बारे में बात बताई, तो डिजाइन थिंकिंग इज सब्जेक्ट जिसमें हम लोगों का बहुत भला कर सकते हैं, लोगों के हिसाब से चीजों को बना सकते हैं, लोगों के हिसाब से चीजों को डिजाइन कर सकते हैं, so that it can bring certain changes in their life. Right? And for that it is very important for us to understand the human behavior. Right? So मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई है आज डिजाइन थिंकिंग और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और when you want to deep dive into it, there are lots and lots of things which can be added to it, and we can identify different stages of design thinking। जैसा मैंने आपको बताया था, डिजाइन थिंकिंग के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एम्पैथी में आप ये देखते हैं कि किस तरीके से हम ह्यूमन बिहेवियर को टच करते हैं। फिर हम हम नेक्स्ट स्टेज दैट इज डिफाइनिंग में जब आप जाएंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से हम एनालाइज और सिंथेसाइज करते हैं। जब हम आइडिएशन में जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम बायसेस को हटाते हैं, देन वी अंडरस्टैंड अबाउट बायसेस। और फिर हम कैनो मॉडल के बारे में समझेंगे, कैनो मॉडल में कैसे हमारी ह्यूमन बीइंग्स की कितने तरीके की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एंड इन द लास्ट स्टेज दैट इज प्रोटोटाइप में हम स्टोरी टेलिंग के बारे में समझेंगे, हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में समझेंगे, हम पिचिंग के बारे में समझेंगे। राइट? सो इन डिजाइन थिंकिंग इज अ वास्ट सब्जेक्ट, और इसको एक बार आपने इसमें एक्सपर्टाइज कर लिया इन डिजाइन थिंकिंग एंड ह्यूमन बिहेवियर, देन यू कैन बी अ विनर फॉर द एंटायर लाइफ। और जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो छोटी सी चीज है दैट इज अ स्टेटमेंट बाय मिस्टर अमित कलांत्री। अमित कलांत्री जी का स्टेटमेंट क्या कहता है? अमित कलांत्री जी का स्टेटमेंट ये कहता है कि स्टॉप शेयरिंग, गलत साइट खुल जाती है कभी कभी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग गूगल, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ओहो फिर गलत हो गया, सो कोई बात नहीं, आई जस्ट ओपन इट। मिस्टर कलांत्री ये कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं खुल रहा, स्टेटमेंट नहीं खुला तो कोई बात नहीं, आई विल डू विद दैट। मिस्टर कलांत्री जी ये कहते हैं, अमित कलांत्री, if you have to convince people or if you have to influence people, you have to touch their heart,
You don't have to touch their heart and to touch their head. अगर लोगों को प्रभावित करना है तो उनके दिलों को छूइए, उनके दिमाग को मत छूइए, because this is the world about emotional quotient, not about intellectual quotient. और इसी को गुलजार साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है कि जिस्म की बात नहीं है, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है। तो दोस्तों, एक बार आपने ये डिजाइन थिंकिंग को सीख लिया तो आप इस लंबी दूरी को बड़े आसानी से तय कर सकते हैं और लोगों के दिलों को छू सकते हैं। और इस जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में, अगर आपने लोगों को दिलों को टच करना सीख लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है, राइट? सो विद दिस नोट I conclude my webinar for 1 hour, which was about design thinking and human behavior. And let's take some questions, if any. Yeah, thank you, Arvind. Any questions? Nidhi writes that it was a very amazing session and it was very interactive and I can just read down a few chat. I would request everyone to have your questions on the chat box itself. Meanwhile, you can write the question. I can read out the chats which are coming. Kainat Ansari says, "Ki sir, your explanation was very nice. A very nice demonstration." Nidhi says it was very informative and amazing session, sir. Thank you, Nidhi. Niharika says, "Yes, sir. Thank you for this wonderful seminar. Links for future webinars, sir. Thank you." Himanshu says, "Amazing session, sir. Thank you so much." Vinny says, "Sir, really, you were superb." Yes, I can understand. Thank you so much for your fantastic exclamations. I'm definitely invite the questions. So wonderful, Kunal. Thank you. Deepachi says you are a good orator. Thank you, Deepachi. Yashwant says thank you, sir. Kaina said really very informative session, sir. Thank you for being. Disha says thank you. Mayank says thank you for this amazing session. Yes, Maheshwar, thank you, Mayank, very much. Maheshwar, thank you very much. Nirali says wonderful session. Thank you. I'm looking for the questions. Thank you, Rana. Thank you, Rishabh. Right. So, sir, how can we use design thinking in tourism? There's a question from Hassan Mirza. Okay. So I would request Arvind to kindly elaborate on that. Thank you, Hassan, for this question. Design thinking, जैसा कि मैंने बताया था, it is a creative problem-solving process in which we can actually use the strategies, creative strategies, which are utilized by creative designers, right? क्रिएटिव डिजाइनर्स की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको हम यूज करते हैं और उसके भरोसे हम एक अपना तरीका इवॉल्व करते हैं, अपना एक प्रोसेस इवॉल्व करते हैं जिसकी मदद से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अब हम टूरिज्म पे अगर लाते हैं तो सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग का सबसे पहले जो स्टेप है दैट इज एम्पैथी। व्हेन वी गो इनटू एम्पैथी वी एक्चुअली रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्सन। तो टूरिज्म पे जब हम किसी कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर से हम बात करना चाहते हैं, हम इनसाइट जानते हैं। तो डिजाइन थिंकिंग में एक छोटी सी बात मैं आपसे मिर्जा साहब कहूंगा। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर आपसे कहूं कि मिर्जा साहब आपको वॉलेट चाहिए तो आप कहेंगे हाँ मुझे वॉलेट चाहिए। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि कौन सा वॉलेट चाहिए तो आप कहेंगे मुझे लेदर वॉलेट चाहिए। तो मैं पूछ सकता हूँ कि लेदर वॉलेट क्यों चाहिए, तो आप कहोगे सर लेदर वॉलेट मेरे को इसलिए चाहिए क्योंकि लेदर वॉलेट ही ज्यादा मिलता है। ओके, लेदर वॉलेट क्यों ज्यादा मिलता है? क्योंकि शायद लेदर वॉलेट ही ज्यादा बनता है। अच्छा, लेदर वॉलेट क्यों ज्यादा बनता है? लेदर वॉलेट ज्यादा इसलिए बनता है क्योंकि लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, लेदर वॉलेट ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? सर वो इसलिए शायद वो ड्यूरेबल है। ओके, so now I can understand what the customer wants. It is not the leather wallet, it is the durability which is the customer is looking for. तो अभी तक तो हमने क्या देखा, अभी हम ये देख रहे थे उसको लेदर वॉलेट बेचने के चक्कर में थे। But now when we understand it is not the leather wallet, it is the durability of the leather wallet which is more important. Now we can suggest him lots of options about durability. क्यों हम कर पाए? क्योंकि हमने 5 बार why पूछा, why. तो 5 why analysis is an inherent part of design thinking. इसी तरीके से हम टूरिज्म में जाएंगे, जब कोई भी कस्टमर या कोई भी ट्रैवलर एक पर्टिकुलर सर्विस चाहता है तो we always ask him why. जब हम उसको 5 why या 4 why पूछेंगे तो हम समझ जाएंगे इनसाइट क्या है, कस्टमर क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है, एक्चुअली क्या चाहता है। तो कस्टमर तो डिजाइन थिंकिंग इज नॉट ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द कस्टमर बट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कस्टमर एट द डीप डाइव। और एक बार कस्टमर को हमने वो दे दिया जो वो एक्चुअली चाहता है, उसके इनसाइट क्या है, उसके दिल में क्या है, देन वी कैन डेफिनेटली
make him a permanent customer, because design thinking talks about the experiences, not about the facts and figures, right? So you have to get into the inside of the customer, and once you get into the inside of the customer, whether it is the travel booking, whether it's the hotel, what kind of experience he wants to have. He wants to have an experience of the countryside tourism, or he wants to have an experience of city tourism, or he wants to explore much about it. So you can understand the real requirement of the customer, and you can actually address given the product accordingly. I hope I could answer your question reasonably well. Yeah, thank you so much, Arvindji, for a wonderful answer. Now, the other questions that I'm seeing are a lot of questions related to design thinking, its implementation, human behavior. So I think we have a positive time, and I would request if all my students agree to it, so we can have a say 4-5 hours workshop spread across Saturday, Sunday, sometime next week or after that. So we can have a short-term certificate course on that. Is that feasible on design Yes, thinking? I can help you immerse into it. Design thinking is a topic in which you have to have a deep dive. Once you have the deep dive, Right, you get the answers of all the questions. right. So I wish I'll float this idea to the student groups on WhatsApp separately. If all the students are agreeing to it, it can be a short-term certificate course for the students. And I would request you, Arvind, to be the lead trainer for that. So we'll work out these issues later on. And I think we have overrun the session's time. Then we have another webinar coming up as well. So thank you, Arvind, for the wonderful session. Very informative, very interactive, and I think it has left in us a process of rethinking about the thinking that we do. And I believe everyone becomes what they think in their life. So you have created a inquisitiveness in us to rethink the way we think. So I think I'll thank you all on behalf of all my staff, my director, my colleague, Mr. Renzing Lama, Dr. Charu, who have all been helping us in organizing these seminars and webinars. And I also thank you on behalf of all my student participants. Okay, And thank friends. you so Thank you. much, Hassanji, for the wonderful session. So regarding the workshop, we will be in touch with you. Thank you Sure. so much. Mr. Bhavan. Thank you very much to you and to all your students, all your staff. Namaskaram. Thank you. Namaskar.